so far what you have understood from the... Is it permanent? No, ma'am. Okay. So today the topic was about class rules presentation. One thing which I have observed consistency regarding the understanding of the topic and delivering the presentation from your side is that you often misunderstood the topic. Like whenever we are giving some topic, that this topic is for presentation and the role of your as to be a teacher, as to be a student in the classroom, and you have to observe such kind of thing in your classroom, or you have to use such kind of strategies in your classroom regarding the presentation. But if I'm talking about the first day or day after day yesterday, the thing which I have noticed that you people are not grasping the actual meaning of the presentation. Last day I have discussed the upcoming presentation topic, that was 5 P's of the classroom rules, very briefly in the class, and I asked everyone, you can ask me questions if you have any ambiguity regarding the topic. But today's topic is not relevant with the given presentation. So first of all, you people have to understand that what is the topic. The topic is classroom rules. This is a classroom rules is the topic. And who has to make these rules? Who is the master of the class? Teacher. Who is the guider or who is the responsible for the class? Teacher. The guardian, the responsible, the master, the mister. These all roles are associated with the teacher. And teacher is a person who has to organize the class, who has to structure the class. That I need this softboard, I will use some kind of prompts or learning widgets here. I have to make a wall display, I have to make a word wall, sight wall, I have to display some kind of 3D, 2D models here, and my sitting area will be this, and all these things are the arrangements that are made by the teacher. But now coming towards the working of the class. The working of the class is incomplete if we don't have the students. Like this is the class, we have only the furniture, we have the walls, we have other things, but there is no student. So my working is useless because I can't teach the walls. I can't teach the bulb, the fan, the window, the door. They are not my students. But when we are giving a lecture, we are having the class, and I am a teacher and I am responsible. So I have to organize some sort of code of conduct with my students. Like we are living in Pakistan, so we have to follow the rules of Pakistan. We have to follow the constitution of Pakistan. If we are driving a car, we have to follow the traffic rules. Yes. If we are in the airplane, we have to follow their rules. Yes. If we are in a hospital, we have to follow their rules. If we are in a bank, we have to follow their rules. So this is an institute and an unit of an institute, and here we have the pupils, the students. So they have to follow the conduct rule. Getting my point? Yes, sir. So the topic is class rules, and here you are a teacher and you are sharing your own experience with other teachers that I am going to give a presentation on the class rules, that how I can manage my class in a very simple way. Like normally whenever the teachers they are sitting together, they discuss their classes. No? Your class is creating so noise. Your class have a remarkable writing. Your class is too good in reading. What strategies you are doing? How you cope up with the noisy students? How you manage the crying babies? That normally the teacher they have discussed, na? Yes. The issues with the class, the students. I have a student who is very vulgar. He is very disturbing child, and he is using very violence with other students, and he always quarrel with others. How can I manage? And the other teacher, she said, okay, I have some of the students which same personality traits, but they are now very much better than the previous experience I have with them. The other will say, okay, how you manage? Yes. Then teacher will share her own way of working with that specific student or that specific class.
that experience, that working methodology, that rules or that conducts are the class rules. That's how you are managing the class. Why all the time I have to say put your finger on your lips? Why? Why I have to say keep silence? Why I have to say don't shout? Why I have to say be polite? When we are crossing the road, is there any slogan that look at left, look at right and then move straight? Are we seeing some kind of slogans there? Have you seen? Where? Have you seen any kind of slogan in the Silly main road or Murray road? Have you seen? In Bharako, have you seen? Or even in Para Chowk, can you see the slogan that turn your head on right and on the left and see the traffic flow and then move and cross the road? Coming in a simple word and using the other language, क्या आपने सड़क पे ऐसी हिदायत लिखी होती हैं कि दाएं मुड़े, बाएं मुड़े और फिर जाके चले? देखी होगी? क्या लिखा हुआ है कि लाल बत्ती का मकसद है रुक जाओ, येलो का मकसद है कि रेडी हो जाओ, ग्रीन का मकसद है चले जाओ? लिखा हुआ है कि सिर्फ वहाँ पे लाइट्स जो होती है? That is understood ना, implied rules है ना, express rules नहीं है. जहाँ पे एक स्लोगन बना होता है सिगरेट का और यहाँ पे यूं धुआं चला होता है और यहाँ पे यूं लगा होता है. What does it mean? No smoke. What does it mean? No smoke. You're not allowed to smoke here. कहीं पे गाड़ी का सिंबल बना होता है, ठीक है, और ये होता है और यू लिखा होता है या पी लिखा होता है और यू होता है. What does it mean? No parking. लेकिन लिखा हुआ कहीं नहीं होता. हाँ, लिखा हुआ कहीं नहीं होता. आप पब्लिक टॉयलेट में जाते हो किसी हॉस्पिटल या किसी रेस्टोरेंट के, तो वहाँ पे एक ऊपर लगा हुआ होता है और यहाँ पे इसकी ना यहाँ एक वो पट्टी सी लगी होती है, उसके यूं निशान बने होते हैं वेव से, ठीक है, और यहाँ पे किसी जगह लगा होता है, किसी जगह नहीं लगा होता, तो यूं एक हाथों का ना सिंबल सा लगा होता है, इनके यूं हाथ बने हुए होते हैं. तो वो कैसे पता चलता है कि इसका मतलब है कि मैंने इसके आगे यूं करके हाथ रखने हैं? कहाँ पता चलता है कि ये एक वो ब्लोअर है और उसके आगे मैंने यूं करके स्ट्रेट हाथ रखने हैं? लिखा हुआ था कि नहीं? तो कैसे पता चलता है कि ऐसा करना है? सिंबल्स. तो सिंबल्स कहीं एजुकेट किए होंगे, कहीं पे एजुकेट किए होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई. हाँ, देखिए ना, आपको कहीं पे भी ये नहीं कहा जाता कि आओ तुम्हें मैं ट्रैफिक रूल. अब हम लोग जो गाड़ी चलाते हैं उसकी ट्रेनिंग होती है लाइसेंस लेने के लिए, लेकिन जो गाड़ी में बैठता है उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती. अंडरस्टूड सी चीजों से खुद आपके सामने चावल की प्लेट पड़ी हुई है और एक तरफ पे शोरबा पड़ा हुआ है या सूप पड़ा हुआ है, तो क्या आप हाथ से शोरबा पी सकते हैं? चावल तो हाथ से खा सकते हैं, लेकिन फॉर द सूप यू नीड द स्पून. तो these are understanding developed with the daily practices, and these practices are labeled with some sort of rules. कहीं शोर नहीं करना, कहीं पे आपने गंद नहीं मचाना, कहीं पे आपने इस जगह को क्रॉस नहीं करना, ये कि प्राइवेट एरिया यहाँ नहीं जाना, ये क्लोज एंड है, यहाँ अंदर गली बंद है जी, ये किसी की मलकियत है. तो दीज आर अंडरस्टूड रूल्स कि हाँ ये रूल है, इसको मैंने ब्रेक नहीं करना. कहीं पे आप देखे होंगे वो एक खोपड़ी सी यूं बनी होती है, ठीक है, और वहां पे यूं बना होता है, निशान बना होता है ना, या एक वो आप गाड़ी किसी में जा रहे हैं तो आपके आगे एक टैंकर चल रहा होगा और उस टैंकर के यही निशान लगा हुआ होगा. हमें नहीं पता उसके अंदर हो सकता है भूसा भरा हुआ हो. हाँ, डेंजर लिखा होता है, यही निशान बना होता है, तो हमें होता है कि नहीं यार इसके करीब नहीं आना, कोई खतरा है. हाँ, होता है ना. तो दीज आर द रूल्स ना, ये रूल्स है ना, ये कुछ असूल और जवाबित बनाए गए हैं जो पढ़ाए नहीं जाते लेकिन फॉलो होते हैं, है ना. क्या आप अपने माँ बाप को थप्पड़ मार सकते हैं? क्यों नहीं मार सकते? कहीं पे पढ़ा है कि माँ बाप पे हाथ नहीं उठाना? कहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना. सोसाइटी ने सिखाया हमें, हमारे कल्चर ने सिखाया. क्या भाइयों में हल्की फुल्की जंग तो होती रहती है बहन भाइयों के साथ, लेकिन क्या उनके ऊपर हम छुरी कांटे तान सकते हैं, बंदूकें? क्यों? Because these are some sort of rules, conducts which are made by the society, by the culture. माशरे तभी आराम से चलते हैं,
पुरसकून तरीके से काम कर रहे होते हैं जब वहाँ के शहरियों को इन तमाम असूलों की आगाही होती है। हम कितने अर्से से यहाँ पे रहे, क्या यहाँ पे कोई सोशल कम्युनिटी डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम हुआ कि आए जी आपको हम सोशल रूल सिखाएं कि माशरे में कैसे रहना है, मोहल्ले में कैसे रहना है, घर में कैसे रहना है, स्कूल में कैसे जाना है, पुलिस स्टेशन कैसे जाना है, हॉस्पिटल कैसे जाना है, बैंक कैसे जाना है, क्या कहीं पे सिखाया जा रहा है? नहीं ना। तो यही चीज तो वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू टीचर्स। हम आप लोगों से भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यू हैव टू ग्रैस्प द इमरजेंसी ऑफ योर क्लास एंड मेक सर्टेन रूल्स. It is you which has to teach the rules to the students for the smooth working of your class and for the smooth development of your student. Getting my point? As coming towards one more example. When we are talking about the rules and the importance of the rules, आपने देखा होगा आर्मी एक सीटी बजती है, कहीं नहीं लिखा होता, कहीं नहीं कहा होता कि क्या है, सीटी बजती है, जहां पे भी कोई भी होता है वो उधर से उसी पोजीशन में अटेंशन, उसी परेड वाली पोजीशन में भागता भागता आता है और किसी ने ये नहीं लिखा था मैं पहले आगे खड़ा हूँ, तुम पीछे हो, नहीं तुम पीछे हो, मैं आगे हो जाऊँ, एक दूसरे को धिक्का नहीं देते, और जहां पे भी होते हैं वो यूं खड़ा होगा, दूसरा उसके पीछे उतनी डिस्टेंस से खड़ा होगा, तीसरा उधर होगा, क्या है ये? नहीं है। अच्छा, इसको भी छोड़े, हम कहते हैं कि इंसानों को संभालना तो बड़ा आसान है, जानवरों को बड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे ये बताएं आप, क्या आपने देखा होगा अक्सर गांव वगैरह में लोगों ने, जिन्होंने रेवड़ रखा होता है, बकरियां वगैरह रखी होती हैं, जानवर रखे होते हैं, तो उन्होंने कुछ कुत्ते रखे होते हैं। तो वो कुत्तों की क्लास नहीं होती, वो मालिक जब जा रहा था कुत्ता साथ लेके जा रहा था, और जब मालिक बकरियों को मुर्गियों को इधर उधर यूं कर रहा होता है तो कुत्ता भी ऑब्जर्व कर रहा होता है, और जब मालिक मौजूद नहीं होता या इवन मालिक मौजूद होता है तो वो उसके साथ असिस्ट कर रहा होता है। वो जो रेवड़ होता है उसको उसकी जगह पे लेके जाता है। इवन गांव में किसी की कोई बकरी भी गुम हो जाए, कोई जानवर गुम हो जाए तो कुत्ता ढूंढ के ला रहा होता है। वो एक जानवर है, लेकिन उसको पता है कि मेरा काम क्या है, उसको पता है कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। But we are the human beings, so we should know what are the rules for practices. Okay? Now coming towards the presentation, एक चीज आप लोग अभी सीख रहे हैं कि हमने कैसे बात करनी है, बोलना है। कल शबनम आपने बात की थी कि आई एम टीचिंग उर्दू, ठीक है? तो वट एवर द सब्जेक्ट वी आर टीचिंग, मैंने कभी भी इंग्लिश नहीं पढ़ाई, मैंने उर्दू भी नहीं पढ़ाई, मेरा सब्जेक्ट लॉ है, मेरा सब्जेक्ट कोई और सब्जेक्ट नहीं है, ना मैथ है ना उर्दू साइंस कुछ भी। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लास एंड द कंडक्ट ऑफ द क्लास, तो हमें हर चीज को देखना होता है। अब आप देखिए, आपके पास कोई भी क्लास है, नीड क्लास की एक ही होती है। क्या आपकी क्लास, आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट स्कूल वगैरह से पढ़े हैं या किसी ऐसे स्कूल में जहाँ पे प्रिंसिपल बड़े हिटलर किस्म के होते हैं, सख्त से होते हैं, तो जैसे मेरी एक फ्रेंड है, तो मैं अक्सर जब स्टेटस लगाती हूँ तो वो कहती हैं कि आपने तो बड़ा बच्चों को सर पे चढ़ाया, बड़ा फ्री किया हुआ है, आप प्रिंसिपल हैं, आपको ये शोभा नहीं देता। मैं तो गेट से एंटर होती हूँ तो पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाती है, और कोई मजाल है कि किसी की आवाज आ जाए। उनके पास 400 प्लस की स्ट्रेंथ है, कि मुझे कहीं से कोई आवाज नहीं आती, मेरा बस गेट से एंटर होना होता है कि प्रिंसिपल आ गई है। अब देखिए, उसने कहीं आते साथ बोर्ड तो नहीं पकड़ा हुआ जा रहा है कि साइलेंस आई एम कमिंग, होशियार माँ गलत आ रहे हैं, कहीं पे भी ऐसा नहीं होता ना। बट क्या है कि उसने एक इम्प्लाइड किस्म का एटमोस्फेयर क्रिएट किया हुआ है। एजुकेशन किसने पढ़ी है? FA में पढ़ी है, FA में, BA में ना एजुकेशन एक सब्जेक्ट होता है। जब हम आर्ट्स में जाते हैं तो उसमें देखिए एक कॉमन एग्जाम्पल दी होती है खरगोश वाली, कि दो बच्चे होते हैं, उनके पास खरगोश छोड़ा जाता है, एक बच्चा उसके साथ खेलने शुरू हो जाता है, और जो दूसरा है जैसे खरगोश छोड़ते हैं पीछे एक धमाका बजता है, पटाखा, तो वो डर जाता है। दूसरी दफा फिर होता है, तीसरी दफा खरगोश तो छोड़ते हैं लेकिन पटाखा नहीं बजता, लेकिन वो खरगोश छोड़ते हैं तो वो डर जाते हैं, रोने शुरू हो जाते हैं। क्यों? ये आगे आपको पटाखा ही होना है, ये है ही पटाखा। तो ये हमारे बिहेवियर डेवलप होते हैं सोसाइटी में ना। आपने चीजों को आसान करना है, मुश्किल नहीं करना। अब वो आसान कैसे करना, ये रिजिड रूल नहीं है, ये रिजिड रूल नहीं है कि हाँ जी आपने ऐसे ही फॉलो करवाना है। नो, हर एक का अपना कल्चर है, हर एक की अपनी जुबान है, हर एक का अपना माहौल है, हर एक का वर्क स्टाइल अपना है। सो यू कैन अडॉप्ट योर ओन स्टाइल। हमें ढूंढना है अपना स्टाइल, हमें निकालना है अपना स्टाइल। मैं कैसी टीचर हूँ, मैं कैसा पढ़ा सकती हूँ, मैं किस तरह है, ये मेरा अपना स्टाइल है। इंग्लिश मैथ करवाने के 100 तरीके होते हैं ना। और कभी ऐसा होता है कि एक टीचर ने मैथ कराया, जवाब बिल्कुल ठीक आया, ट्यूशन वाला कहता है नहीं तुम्हारे वाले तो इस तरह का सवाल होता है, नहीं इधर आप बता दो, ये ऐसे ऐसे सवाल होता है। स्टूडेंट कंफ्यूज हो
कान इधर से पकड़ रहे हैं, घुमा के इधर से पकड़ रहे हैं। कोई कह रहे कान पकड़ो, तो कोई इधर से पकड़ रहा है, तो कोई घुमा के पकड़ रहा है, कोई यूं पकड़े पकड़े तो कान ही है ना, तरीका अलग है। ठीक है, तो हमें चीजों को आसान करना है। योर प्रेजेंटेशन वाज क्लासरूम रूल्स। अब ये कुछ उन्होंने आपको फार्मूला दे दिया कि एक फार्मूला है, जनरल फार्मूला। जैसे मैंने आपको कल MR का बताया था कि MAR को मैंने कैसे मॉडिफाई कर दिया, तो यू कैन मेक योर ओन रूल्स ना। आप देखें, आप P से कुछ और बना सकते हैं, आप S के फार्मूलाज बना सकते हैं, आप D के फार्मूलाज बना सकते हैं, लेकिन आपकी चीजें बहुत ऑब्वियस होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। मुझे ये ना कहना पड़े क्लास हो रही है तो एक क्लास शोर कर रही है। अच्छा चले, मैं आप लोगों से जस्ट आस्किंग एग्जाम्पलरी आंसर फ्रॉम योर पीपल कि यू पीपल जस्ट केम और एक क्लास शोर कर रही है, बहुत शोर कर रही है, तो सिर्फ आपने ना 30 सेकंड्स का जवाब देना है कि कैसे चुप कराएंगे। कई बार क्लास शोर कर रही है, बहुत ज्यादा शोर कर रही है, कैसे चुप कराएंगे? 30 सेकंड जल्दी। साइलेंट साइलेंट। आप Keep quiet. Keep Don't quiet. shout. डोंट शाउट। आप Listen everyone carefully. लिसन एवरीवन केयरफुली। आप फर्स्ट मैं उनकी तवज्जो अपनी तरफ करूंगी। कैसे? कि जैसे मैं आऊंगी तो कुछ बात करूंगी उनसे, ताकि हमें वो 30 सेकंड में वो बताएं, बस प्रोसीजर ना बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू मी। लिसन टू मी। यस। 30 सेकंड में इतना ही होता है। Don't make a noise. डोंट मेक अ नॉइज। मेरा तो स्टाइल में लेके खड़ी हो जाती हूँ ऐसे। वेरी गुड। Be बी क्वाइट। और मैं कुछ बोर्ड पे उनकी टेंशन जो है ना डाइवर्ट करने अगर क्लास शोर कर रही है, आप कुछ नहीं कहेंगे, आप क्लास से आएंगे तो लिखनी शुरू हो जाएगी। कुछ मतलब एक दो बार जो होंगे ना वो कुछ होंगे। मतलब आप वहां से यहाँ तक बिल्कुल हमेशा से आएंगे, इधर शुरू हो जाएंगे, ये लगे हुए भंगड़े डाल रहे हैं। आप क्या साइलेंट हो जाए। आप साइलेंट कहेंगे। अच्छा देखिए, हमारे पास कितने लोग हैं और सबका जवाब डिफरेंट है ना, बट आई विल एग्री 120% विद मिस नगमाना। क्यों हर दफा मुझे शाउट करना पड़े? बी क्वाइट, साइलेंस, डोंट शाउट, लिसन टू मी। आप आके खड़े हो जाए, सब लगे ना, आप खड़े हो जाए, ऑब्जर्व करें। आपका कहते हैं ना एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। आप खड़े हो गए हैं तो लगे हमें हो गए 1 मिनट 2 मिनट मुझे तीसरे मिनट को देख के सारे चुप करके आपको बैठने की जरूरत ही नहीं होगी। ऐसा ही होता है ना। देखिए दिस इज बोला नहीं है ना, ये आपको देखिए ना, वो कहते हैं ना, मौके के बाद जो थप्पड़ याद है वो परसों लगाना चाहिए। मैं करती है ऐसे, लेकिन आपने कहा ना कि बोलेंगे क्या, तो फिर मैंने देखिए उन्होंने भी तो कहा ना एक्सपीरियंस बड़ी मैटर करता है। तो वी हैव टू सॉर्ट आउट द थिंग। ये भी एक रूल है कि क्लास को काउंट डाउन कैसे करना है। हर एक का अपना एक स्टाइल है ना, तो आपने अपना एक स्टाइल बताया, ठीक है। तो आप बच्चों को ऐसी चीजें बताएं, ऐसा एक होता है एक्सप्रेस, एक होता है इम्प्लाइड। एक्सप्रेस में क्या था? डोंट शाउट, सिट डाउन, कीप साइलेंट। इम्प्लाइड क्या था? आप आए, आपने एक्शन करके दिखा दिया, ठीक है। तो देयर इज समथिंग आप इम्प्लाइड लेके आए ना बच्चों को, लाइक बजाय से कि हम कहें, हम चीजों को डिफरेंट कर लेते हैं ना। बच्चा शोर कर रहा है बहुत ज्यादा, तो आप हाथ हिला के फौरन वो चुप हो जाएंगे। बजाय से कहेंगे पुट योर फिंगर्स ऑन योर नेक्स, तो नहीं, वो थक जाते हैं ऐसे बात सुन के ना, वो इरिटेट होते हैं। यहाँ पे हमने पेशेंस की बात की कि आप अच्छा जब बी लगता है तो पेशेंट होता है, ठीक है। अदरवाइज वी विल से पेशेंट। इंग्लिश के टीचर थे, आपने गलती नहीं निकाली। ऊपर भी है प्रेजेंटेशन। देखिए मैं कोई गलती नहीं निकालती मैडम टी एक स्पेलिंग भी गलत है सर। आज से आपका काम कैसे होता है ना, मैंने कल किया था, आज भी याद था, लेकिन आज मैंने आपको करना चाहिए था। मैंने तो 3 दफा कहा इनको, लेकिन उन्होंने कहा फिर वो जो आपने और सेंड किया ये देखिए, आप जस्ट पेशेंट नहीं बनते ना, मैं जो आपने सेंड किया हुआ है उनको ग्रुप में, वो ला के वो दिखा दिया कि ये देखिए मैम ने यही सेंड किया हुआ है, तो मैं यही लिखूंगी। वो फिर उन्होंने लिखा, फिर मैंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ। ये तो आपका इंटेलिजेंट टेस्ट है। चले अंदर से। मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं आप लोग की गलतियां नहीं निकालूंगी, कहा था ना मैंने, मैं आप लोग की गलतियां नहीं निकालूंगी। आपने तो निकालनी है अपनी गलतियां, एक दूसरे की निकालनी है। यहाँ पे हमने व्हाट वी आर लर्निंग हाउ टू एक्सप्रेस योर ओन एक्सपीरियंस, हाउ टू टेक द क्लास,
how to deliver the lecture, how to give the presentation. This is our motive of these 3 days class. ठीक है, अब उसका हमने रिजल्ट देखा. आज तैयबा ने बहुत अच्छा बोला. ठीक है, कंपैरेटिवली Sadia has started very well, Halima has started very well, Hafsa you did very well, she did very well. तो this is something कि तीसरे दिन देखिए कुछ शक्ल तो निकल रही है ना. Only we need the courage. We need the courage to face the camera. We need the courage to face the audience. किसी ने भी ना कोई भी इधर गोल्ड मेडल लेके नहीं बैठा होगा. ठीक है, हम सब इसी तरह की गलियों से गुजर के आए हुए हैं. तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप आके आप कहेंगे नहीं मैंने ये नहीं. हमने बोलना है भाई. एंड वी आर नॉट अ नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स ना. हम कोई पटवारी है, कोई पश्तो है, कोई पंजाबी है, कोई बलोची है, और फिर हम उर्दू में पाकिस्तानी आ जाते हैं, और पाकिस्तानी के बाद फिर हम आगे आ जाते हैं गोरे बच्चे छोड़. ठीक है, तो हमें अपनी चीजों को, एंड मैं कहती हूँ वी आर द मच मोर इंटेलिजेंट देन देयर सेल्फ. बिकॉज क्यों? बिकॉज हमने तो बहुत कुछ सीखना है. हम कितनी लैंग्वेज के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, और उनका एक ही लैंग्वेज है इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश. तो हमें भी सब कुछ उर्दू में मिल जाए, पंजाबी में मिल जाए, तो फिर देखेंगे हमारे कमाले. ठीक है, ओके. Now, मैंने कल I have given the example, Sadia, to you when you were asking some questions. How can, like, you people know how to make your class silence. You people know how you will ask them to start the work. There is something prepared. Prepared is that your notebook should be prepared, your work should be prepared, your presentation should be prepared. You have to be prepared for school. If you are coming here in your school for attending the class and you are wearing the pajamas and shorts, this is not the dress code for the class. You have to be prepared. And if you are wearing the uniform but your hairs are scattered and they are just like a blast, this is not the way you are prepared for the class. Okay? So, physically and by your behavior, conduct, and the things which you are bringing to the class, that should show that you are well prepared. If we are going to appear in any exam, we will see our markers, our pen, our clipboard, our mark sheet, our date sheet, or whatever we are roll number slip. Then we will move to the examination center. What all these exercises are called? Preparation. ठीक है, अगर आपने पेपर देना है और आपको पता ही नहीं, आज आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं और आगे जाके मैथ का पेपर हो जाए, तो प्रिपरेशन थी आपकी? नो, आप प्रिपेयर्ड ही नहीं थे. देन प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी ये नहीं है कि आप प्रोडक्टिविटी को आप डिफाइन नहीं कर सकते. प्रोडक्टिविटी इज समथिंग, इफ यू आर डूइंग समथिंग एंड यू आर गिविंग सम टास्क, दैट शुड बी प्रोडक्टिव. इफ यू आर टीचिंग ए और ए एंड द साउंड, व्हाट आर दिस? Recognition, visual, sound, spoken. These 3 skills. And then if the student who has weak fingers and he is unable to write, तो क्या हम कहेंगे कि ये फेल हो गया, या हमारा जो प्लान है वो फेल हो गया, हम प्लान अच्छा नहीं कर सके? आपका मकसद क्या था? पहले वो देख के पहचान कर सके, फिर उसको सुन सके, और फिर उसको बोल सके. ठीक है, अब इन सब चीजों में आप उसे कहते हैं कि आप पेंसिल लेके लिखें. मे बी उसकी फिंगर्स इतनी वीक है कि वो जो थिन पेंसिल है वो ना होल्ड कर सके. आप उसको मार्कर देख के देखें, आप उसको क्रेयन देख के देखें, आप उसको सेंट्रे देख के देखें, आप उसको स्किन पे सेंट्रे लिखा के देखें, तो वो किसी ना किसी राइटिंग मॉड्यूल में फिट आ जाएगा. दैट इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ योर लेसन. That is the productivity. If the student has very vulgar kind of handwriting, so will we leave him or her? No. We will find the alternates. ठीक है? Some of the students, they feel very difficult to write in these narrow lines. Huh? Is it so? Yes. But then we use these broader lines copy. Yes. Huh? And some of the students, they find very difficult to write Urdu in these lines. But they are very good to write Urdu here. They know when to write and where to write. Huh? So some of the schools and some of the teachers, they prefer 4 lines copy for Urdu. Yes. Because they are finding the alternations. Yes. Huh? So class rules are all what they mean are the methodologies, the techniques, the alternative ways, the rotation of your lesson, your class environment, the outcome of your SLOs. This is all something about it. Because when you are making the rule, this is my class and you have to be in your line
B on your seat. This is group A, B, C, D. So group A, you have to go there. So group A will move there. Group C will move to their table. And when you said, okay, you have to put your water bottles on that specific table. Once you have to teach them. Once you have to make them listen the rules. Once you have to make them to execute the said action in your presence. Under your observation. Okay, when I say group A, bring your copies. Put your copies here. So you ask a specific group and give them a specific place. And next day you just stand here. Group A, put your copies there. And you're not watching there. You're just asking. The second day, group A, they just stand and move there. And the third day, without asking, without telling someone, they will definitely stand up, pick their copies and they will put their copies there. These are the rules. These are the conducts. These are the code of conduct. They know how to behave. When you say that, okay, I am giving you a test and this is the topic of your test and you have to put proper margin with blue marker, with a cut marker, and you have to use the pointer and you have to give a separator after the topic, and after finishing the question you have to give a separate line and then start another question with the proper heading and then write the question and then an answer heading and then start the answer. This is a pattern you are giving to the student. This pattern should be explained to our students for 2 to 3 times because you are teaching them something new. But after giving brief explanation to this pattern, you just said, okay, copy the question and start writing. This is sufficient. So whose work is getting easier? Students or teachers? Teachers. So making your own work easier, you have to make some rules. How to calm down the students. How to make the writing of the students beautiful. How to make the student to look after their copies and books. How to make the student to keep their uniform neat, tidy, their hair proper cut, their nail proper cut, their teeth should be brushed. Although we are an institute, we are a classroom, we are a teacher, but we have to teach our students the proper nazra. We have to teach our students the proper dress coding. We have to teach them how to cut the nails. We have to teach them how to brush the teeth. We have to teach them, do not take someone's thing without asking. If you need something, you can ask, Miss Sadia, please give me, can I take your copy or please give me your copy. If Miss Sadia gave me, then what should I say? Thank you so much. If you want to move somewhere and if someone is standing there and you want to move there, what will you say? Excuse me, please take a side. So instead of I side pe, you can use the polite words. Thank you. The magical words which we are saying, thank you so much, please, wow, beautiful. If a student is not doing well, then the others they are doing, but still you are saying, wow, you done great, you improved a lot. These words have the magical impact. I have shared the presentation of a Chinese doctor with you. I think I have shared with, I don't know with whom, but there is a doctor, मुझे उनका नाम भूल गया है, and उन्होंने रिसर्च की पानी पे. And you know, as a Muslim, what we are doing, हम सूरह यासीन पढ़ते हैं, पानी में फूंकते हैं तो पिला देते हैं. बच्चा बीमार हो गया तो उसको कुछ पढ़ के फूंक दिया या पानी फूंक के पिला दिया. मियाँ को थैंक गॉड मेरा मियाँ नबी. अब ये चीजें क्यों करते हैं हम कि वी हैव द फेथ कि ये मैजिकल वर्ड है, ये बड़ा पाक और बरकत वाला कलाम है और इससे शिफा मिलती है. हाँ, तो आपने देखा क्रिश्चियन दे हैव सम सॉर्ट ऑफ देयर वाटर कैन समथिंग एंड दे आर जस्ट थ्रोइंग देयर वाटर, स्प्रिंकलिंग देयर वाटर इन द कॉर्नर्स. इसी तरह हिंदूज दे हैव समथिंग देयर, और वो भी जब वो पूजा करते थे उसके बाद वो भी छिड़काव कर रहे होते हैं हर जगह पे. हाँ, तो उसने क्या किया, उसने पानी पे रिसर्च की. उसने डिफरेंट सैंपल्स उठाए, ठीक है, फ्रॉम चर्च, फ्रॉम अ स्ट्रीम, फ्रॉम अ रिवर, फ्रॉम समथिंग, मतलब दूसरी जगहों पे कोई दम किया हुआ पानी भी रखा उसने, और फिर किसी पानी के पास जाके कहता है कि तुम तो अजाब हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, और तुम मर क्यों जाते, तुम मेरी जिंदगी से खत्म क्यों नहीं करते, तुम तो जहर हो, इस तरह. तो अब इस सब कुछ कहने के बाद व्हाट ही डिड,
कि उन्होंने उसकी ना जो क्रिस्टलाइजेशन वाटर की होती है ना उसको ऑब्जर्व किया। जहाँ पे मोहब्बत की खुलूस की बातें थी, जहाँ पे कोई कलाम पढ़ के फूंका गया नियत के लिए ना, शिफा के लिए, तो वहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन बड़ी खूबसूरत थी। लेकिन जहाँ पे हिटलर और ये वो इस तरह की उल्टी सीधी बातें करने, नफरत की बातें की गई, वहाँ पे बड़ा डिस्टर्ब स्ट्रक्चर था क्रिस्टलाइजेशन का। अब इसी चीज को आप लिंक करें ह्यूमन बॉडी के साथ। ह्यूमन बॉडी पानी पे कितना कंसिस्ट होती है? 1/3 ठीक है, मतलब 70% आपकी जो बॉडी है किस पे कंसिस्ट करती है? वाटर पे। आप इसको यार निकम्मे हो तुमसे नहीं होता, तुम्हारे हाथ टूटे हुए, तुम्हें बात करना नहीं आता, तुम्हें पढ़ना नहीं आता, मेरी मेहनत जाया कर दी है, वो बच्चा कभी भी आगे नहीं जा सकता। अगर आप इस रिसर्च को जहन में रख के आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करें, जो डल से डल स्टूडेंट है ना उसको टारगेट करो, और वो लिख रहा होगा वाओ ब्यूटीफुल, तुमने क्या जबरदस्त लिखा है यार, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल, तुमने आज कितना जबरदस्त यूनिफॉर्म पहना है, तुम्हारे बाल आज बड़े प्यारे लग रहे हैं। यू विल फील द डिफरेंस विद इन 3 to 7 days। आपको फर्क नजर आएगा उसमें। मैंने जब ये ट्रेनिंग में इसके बारे में सुना, मैंने इस पर थोड़ा सा स्टडी किया नेट से, एंड देन मेरे पास एक बच्चा था अब्दुल समाद एंड वासिम, आई स्टार्ट वर्किंग। अच्छा, उसमें एक था बड़ा गोरा चिट्टा बच्चा और एक था डार्क कम्प्लेक्शन का। तो जो डार्क कम्प्लेक्शन का, तो उसकी वो कुछ फैमिली डिजास्टर से गुजर चुका था, मदर नहीं थी उसकी, तो वो बड़ा सेंसिटिव बच्चा था। और जब डार्क, आपको पता है हमारी सोसाइटी ऐसी है कि वो जो प्यारा होता है उसी को बड़ा लाड प्यार करते होते हैं, तो उसको ये था कि सोसाइटी से भी वो नहीं प्यार मिल रहा था और माँ भी नहीं थी, तो वो बहुत ज्यादा मेंटली भी डिस्टर्ब बच्चा था। बट मैं उसको हमेशा शहजादा बोलती थी, वासिम मेरे शहजादे, और हम उससे बहुत प्यार से बात करें। और मेरे साथ एक और टीचर थी मिस सोफिया, तो हमने टारगेट किया कि हमने इन दोनों को ना एक्स्ट्रा क्लासेस देनी है ऑफिस में भी बुला के। तो वो बैठे हो, हम उनको हक करके भी बैठे हैं, हमने चलो लंच भी इकट्ठा करें हम। शहजादे आपने तो कर लेना, आप तो आपसे तो अच्छा कोई कर नहीं सकता, हम देखो सबको सरप्राइज देंगे। एंड यू नो कि जहाँ पे वो आई थिंक 7 या 8 मार्क्स मैथ में उसने लिए थे एक टर्म में, जो फाइनल टर्म था, तो उसने 97 मार्क्स लिए आउट ऑफ 100, और दैट वाज द सक्सेस स्टोरी। मेरी टीचिंग लाइफ में अगर मैं कहूँ तो वो सेकंड सक्सेस स्टोरी थी मेरे लिए, जो मैंने एक रिसर्च को सुनने और करने के बाद अप्लाई किया, दैट वाज द फर्स्ट वन। लेकिन मेरी लाइफ में सेकंड इस तरह थी कि जब हमने टीचिंग स्टार्ट की तो मुझे डम एंड डफ बच्ची मिली जो बोल नहीं सकती थी, जो सुन नहीं सकती थी, तो मैंने उसको पढ़ाया और वो चैलेंज था, लेकिन उसने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया और वो पढ़ गई। और हम जब एनुअल फंक्शन था, पीछे म्यूजिक लगा हुआ था, तो वो सुन नहीं सकती थी म्यूजिक, लेकिन उसके परफॉर्मेंस और दूसरे बच्चों के परफॉर्मेंस में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था, दे वर डूइंग द सेम। तो दीज आर द सक्सेस स्टोरीज ऑफ टीचिंग लाइफ, टीचिंग कैरियर। तो हमारे पास तो बहुत बड़ा मवाद है, हमारे पास तो बहुत ह्यूज एरिया है, बहुत ज्यादा तादाद है, तो हम उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें निकाल सकते हैं। सो रूल्स मीन्स यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव, यू हैव टू डेवलप सम सॉर्ट ऑफ। आपने देखा होगा कुछ क्लासेस के बाहर ना कुछ टीचर ने वो डिफरेंट वो लगाए होते हैं चार्ट्स, नहीं ये नहीं, वो इम्प्लाइड चार्ट्स लगाए होते हैं, किसी ने हाई फाई करना है, किसी ने शेक हैंड करना है, किसी ने जंप करना है, किसी ने टर्न होकर क्लास में आना है। तो वो क्या है, वो बच्चा आता है, टीचर खड़ी होती है और बच्चा कहता है मैं आज ऐसे आऊंगा, तो हो सकता है वो हाई फाई है, वो टीचर को क्लैप करके जाएगा। दूसरा कहता है मैंने शेक हैंड करके, तो वो क्या है, वो टीचर ने कुछ रूल्स, कुछ क्रिएटिविटी बनाई है ना बच्चों को अपने साथ जोड़ने की, ठीक है। अब वो टीचर है, उसने क्या किया कि अब बच्चे से उसने क्लीननेस का चेक करना था, तो वो बैठ के काम कर रहे थे, तो उन्होंने जैसे हमारे पास डिफरेंट चीजें पड़ी हैं, तो उसने यूं करके ना तो यूं डिफरेंट जगहों पर फेंक दी, और वो एक जगह बैठ के काम कर रही थी, और वो दैट वाज द मॉर्निंग टाइम, और उसकी क्लास में आना था। तो वो उस दिन वो बाहर नहीं खड़ी हुई, तो वो जब क्लास आने शुरू हुई तो उसने कुछ चीजें यहाँ पे होता था फेंक दी, तो उसने नीचे झुक के ना वो चीजें उठा रही थी, और वो बच्चों की तरफ मुड़ी भी नहीं थी, सिर्फ ये देखने के लिए बच्चे क्या करेंगे। तो while doing that same thing she observed कि वो बच्चे बगैर कहे वो सब आए, उन्होंने अपने बैग साइड में रखा और चीजें उठाने शुरू की। टीचर ने नहीं कहा कि क्लीन द सराउंडिंग, पिक द गार्बेज, पिक द ट्रैश, नो, उनको किसी ने इम्प्लाइड सिखाया है ना कि बगैर कहे वो कर रहे हैं। तो वी नीड अ जनरेशन जिसको कहा ना जाए, वी नीड अ जनरेशन जो इनबिल्ड हो, जिसके अंदर मॉरल वैल्यूज इनबिल्ड हो। वी नीड द जनरेशन कि जो जिसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास बगैर कहे हो, और ये आपके अर्ली ईयर से शुरू होगा, प्ले ग्रुप से शुरू होगा। कौन करेगा? टीचर्स करेंगे। सफाई रखनी है, सच बोलना है, दूसरे की बात को बर्दाश्त करो, किसी की चीज पूछे बगैर ना दो, देख शेयरिंग एंड केयरिंग का लिहाज करो, अच्छी बात करो,
तो ये सारी चीजें आप जब बच्चों को शुरू से ही उनके अंदर इन्बिल्ड करेंगे तो कुछ अर्थ में कहती हूँ मैक्सिमम किसी को टाइम लगेगा वो 1 महीना होगा, उसके बाद आपको कहने की जरूरत नहीं है, चीजें खुद बहुत होना शुरू हो जाएगी। सो नाउ आपको समझ आई व्हाट इज द टॉपिक। कोई भी टॉपिक होता है वो ये नहीं होता कि आपने आके यहाँ पे ये कहना है कि टीचर ये करेगा हम ये नो, यू आर अ टीचर एंड दीज आर द स्टूडेंट्स एंड यू आर कमिंग फ्रॉम द क्लास डोर एंड यू आर स्टैंडिंग हियर, so all of the movement should show that you are the teacher and you are doing something crazy in the class, and we have to make a consistent eye view with the teacher। जहाँ टीचर काम कर रहा हो, कोई बच्चा यूं मुड़ा हो, कोई उधर मुड़ा हो, कोई बाय डाइवर्स मीन कि टीचर ऐसी नहीं है कि जो बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करवा सके। अगर एक टीचर पढ़ा रहा है और बच्चा सो गया है तो ये बच्चे की गलती नहीं है, किसकी गलती है? टीचर की गलती है, क्योंकि उसने बच्चे को ऐसे स्लीपिंग मोड में ले आया है कि जहां पे उसको लगा कि यार ये तो कोई इंटरेस्ट की बात ही नहीं है, बस आप सो लो। ठीक है, सो वी ऑल आर द टीचर्स एंड वी हैव टू adopt creative ways, creative methodologies to make our class a remarkable one, a creative one, and awesome one. Okay, I rest my arguments here. If anyone want to say something, you people can say.